Hello guys, I welcome you all to the day 94 of our series, and today we will be learning some new linking words which will help you emphasizing your point. So let's move forward. And this was your yesterday's task which you were supposed to perform. So पहले एक बार इसको देख लेते हैं. आपको blanks fill करने थे यहाँ पे. One by one देखते हैं. When you move to a new area, you need to register. You need to register with a doctor. With most surgeries, if you need out of hours care and your doctor is not available, there will be an answer phone message and you will be referred. To another doctor. If you have a serious problem which involves seeing a specialist, you can get a referral by asking your GP, general practitioner, to write to the hospital. If you aren't happy with the specialist's diagnosis, ask for a second opinion. You can gain access to your medical records at your GP surgery. All healthcare is free of charge, or you can say free of cost, even plastic surgery if it is for medical reasons, and some surgeries also make use of complementary medicines. If you are unhappy with your treatment and suspect medical negligence. यानी कि medical लापरवाही, you should speak to the medical staff first before taking any further action. कि पहले आपको medical staff से बात करनी होगी, उसके बाद में ही next कोई आप action लेना. तो ये था आपका कल का टास्क, और आज हम करेंगे emphasizing words, यानी कि वो words जो आप कुछ भी बात बोलना चाह रहे हो उस पे emphasize कर रहे हो, उस पे जोर डाल रहे हो. तो start करते हैं. तो first word है हमारा in fact. हम बोलते तो ये है in fact, लेकिन ये hidden होता है in point of fact. तो आप जैसे नॉर्मली बोलते हो actually, तो actually को आप रिप्लेस कर सकते हो in fact और in point of fact इन वर्ड से. तो चलिए एग्जांपल्स में आते हैं. I told them not to invite Rachel to the party. In fact, यानी कि actually, दरअसल, हकीकत में, वास्तव में, I was the only person who knew what a wet blanket she really was. तो यानी कि in the point of fact, I was the only person, यानी कि दरअसल में, हकीकत में सिर्फ मैं ही इकलौती पर्सन थी जिसको पता था उसके बारे में. तो अब यहाँ पे किया क्या है, in fact ये फ्रेज ऐड करके हमने इस सेंटेंस को emphasize किया है, इस पे जोर डाला है कि हाँ एक्चुअल में ये बात ऐसे थी. तो यहाँ पे आप एक्चुअली यूज करने के बजाय in point of fact ये सारे फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो. और यहाँ पे हमारे पास एक इडियम निकल के आया है, a wet blanket. तो ये हम बोलते हैं ऐसे पर्सन को who is a spoil sport, SPOIL, spoil यानी कि जो खराब कर दे, sport यानी कि किसी भी पार्टी में अगर हम गए हैं तो वहां पे सारा माहौल अगर खराब कर दे कोई पर्सन, या फिर जो नेगेटिव वाइब्स दे, तो उस पर्सन के लिए हम ये फ्रेज या फिर ये इडियम यूज करते हैं, that he or she is a wet blanket to this party. नेक्स्ट में आते हैं, I think it would be a great idea to send her home, to send her some flowers. कि मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि उसको कुछ फ्लावर्स भेजे जाएं. Actually, you should get her 100 orchids, यानी कि और दरअसल वास्तव में, या फिर अब यहाँ पे इस सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस पे emphasize किया गया है कि तुम्हें उसे 100 orchids गिफ्ट करने चाहिए. तो यहाँ पे भी आप एक्चुअली की बजाय अगर ये यूज कर सकते थे कि इन पॉइंट ऑफ फैक्ट यू शुड गेट हर, तो ज्यादा अच्छा होता. सिमिलरली नेक्स्ट में आते हैं. She says that she doesn't know him, but in point of fact, they have been seen together many times. कि वो तो ये बोलती है कि वो उसको नहीं जानती, लेकिन अब यहाँ पे जो आगे वाला सेंटेंस है इस पे emphasize किया गया है, इस पे जोर डाला गया है कि in the point of fact वो साथ में बहुत बार देखे गए हैं. They have been seen together many times. नेक्स्ट में आते हैं, इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट शी इज देयर अडॉप्टेड डॉटर. अब यहाँ पे emphasize इस बात पे किया गया था कि वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है. सो इन पॉइंट ऑफ फैक्ट या इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट या इन एक्चुअल, इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी, शी इज देयर अडॉप्टेड डॉटर.
नेक्स्ट में मूव करते हैं, मैनी पीपल बिलीव सर्जरी इज द ओनली आंसर, कि सबको लगता है कि सर्जरी जो है वो एक लास्ट पॉइंट है, कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, लेकिन दरअसल एक्चुअल में देखा जाए तो अ चेंज इन डाइट इज ऑफन इनफ, डाइट में चेंज कर लिया जाए वो भी इनफ होगा, वो भी काफी रहेगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस पे फोकस किया गया है, इस पे एम्फेसाइज डाला गया है, इन पॉइंट ऑफ फैक्ट। सो नेक्स्ट में आते हैं, सो नेक्स्ट फ्रेज पे आते हैं, दिस इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। Coming to the first sentence, I love sleeping with my pet cat as a matter of fact, और इसके बाद में जो sentence होगा वो ज़्यादा important होगा। So as a matter of fact, I can't fall asleep unless he is in my bed। अब यहाँ पे cat को ही कहा गया है ये। देखो नॉर्मली क्या होता है, एनिमल्स के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि अगर ही और शी भी अगर हम यूज कर दे तो वो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं, आई हैवंट बीन हेयर लॉन्ग, कि मैं काफी लंबे टाइम से यहाँ नहीं हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई जस्ट गॉट ऑफ द प्लेन यस्टरडे, यानी कि मैं कल ही यहाँ पे आई हूँ, मैं ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ नहीं हूँ। नेक्स्ट में आते हैं, आई न्यू हिम व्हेन वी वर इन कॉलेज, कि मैं जब कॉलेज में थी तब मैं उसे जानती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब यहाँ पे इसके बाद में जो बात होगी वो जरूरी होगी, वो इंपॉर्टेंट होगी, दैट वी वर ऑन द सेम कोर्स, कि हम तो यहाँ तक कि सेम कोर्स पे भी थे। नेक्स्ट है, ही प्रिटेंड्स टू अंडरस्टैंड, कि वो समझने का सिर्फ दिखावा करता है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, दैट ही डजंट, कि वो नहीं समझता। नेक्स्ट इज बीइंग अ स्टूडेंट नर्स इज नॉट ईजी, ये आसान काम नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब यहाँ पे जोर डाला गया है दैट इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव एवर डन, ये सबसे मुश्किल चीजों में से एक है जो मैंने अब तक की है। नेक्स्ट फ्रेज पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेंटेंस है इंडीड। इंडीड को हम यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली की बजाय। देखो कई बार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन कोई क्वेश्चन करता है हमसे, या फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट बोलता है कि उसमें वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसका रिप्लाई पॉजिटिव में दें, एक इंपरेटिव फॉर्म में दें। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ बेशक, सही बात है, तो वही है, उसी को इंग्लिश में इंडीड बोल देते हैं। यानी कि हिंदी में आप बोलते हो ना बेशक, हाँ बिल्कुल, ये सही है, तो उसी को इंडीड कहा गया है। वहां पे ऑब्वियसली की बजाय अगर हम इंडीड यूज करेंगे देन दैट विल साउंड मोर इम्पैक्टफुल। एग्जाम्पल में आते हैं, अ सेलर्स लाइफ इज इंडीड अ हार्ड लाइफ, यानी कि जहां पे भी हम इंडीड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर फोर्सिंग आवर स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो सेलर की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइफ है, बेशक, इस बात में कोई शक नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है दैट डू यू एग्री, तो सामने से रिप्लाई क्या आता है, इंडीड आई डू, या फिर यस इंडीड, कि हाँ बेशक मैं एग्री करती हूँ तुम्हारी बात से, इंडीड आई डू। नेक्स्ट इज डिड यू नो हिम, कि क्या तुम उसे जानती थी पहले से, तो इसका आंसर भी क्या है, आई डिड, मैं जानती थी। देखो आई डिड पे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो सकता था, बट स्टिल यहाँ पे जो स्पीकर है उसने आगे ये वर्ड यूज किया दैट इंडीड, जिससे क्या है कि आई डिड ये एम्फेसाइज हो गया कि हाँ मैं बेशक बिल्कुल जानती थी उसे। नेक्स्ट इज दिस वॉज इंडीड द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, कि ये जो दिन है वो बेशक अनडाउटेडली मोस्ट मेमोरेबल डे है, सबसे यादगार दिन है मेरी लाइफ का। नेक्स्ट है, आई वॉज अनॉयड, कि मैं अनॉयड थी, अनॉयड मीन्स इरिटेटेड, I was irritated, indeed फ्यूरियस, और फ्यूरियस पे ज्यादा फोकस किया गया है, यहाँ पे इस पे ज्यादा इम्फेसाइज डाला गया है। तो ये है कि मैं हाँ इरिटेटेड भी थी, और इनफैक्ट मैं फ्यूरियस थी, एक्चुअल में तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी ओवर व्हाट हैपन, कि जो भी हुआ उसकी वजह से। नेक्स्ट है, लेटर he admitted that the payments had indeed been made, कि पहले तो वो मना कर रहा था कि पेमेंट्स नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बाद में फाइनली he accepted that the payments had indeed, कि हाँ बेशक ऑब्वियसली जो पेमेंट्स हैं वो हुई थी, so the payments had indeed been made। नेक्स्ट में आते हैं, it should be noted, we can also use this phrase to emphasize our point। So in this respect, it should be noted that increase in heartbeat can also be triggered by stress factors other than heat,
ये कहा गया है कि इस बात पे तो स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो हार्ट बीट है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है किससे, देखो कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, वो स्ट्रेस से भी इंक्रीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार गर्मी से ही हो, हीट के अलावा स्ट्रेस भी उसे ट्रिगर कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। सो इट शुड बी नोटेड, यानी कि इस बात पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए, खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, मोर ओवर इट शुड बी नोटेड दैट अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेशन, कि इस बात पे तो खासकर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो दूसरी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो भी एक रोल प्ले कर सकती हैं सुपरविजन में ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड दैट, अब इसके बाद में जो भी बात होगी वो बहुत जरूरी होगी, जिसपे एम्फेसाइज डाला गया होगा, एम्फेसिस डाला गया होगा। So these data are correlational, कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड वी नीड द अदर फैक्टर टू, और हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, हमें दूसरा फैक्टर भी अभी चाहिए होगा। दस कैजुअलिटी कैन नॉट बी अज्यूम्ड, और इस वजह से जो कैजुअलिटीज हैं, जो भी नुकसान हुआ है वो अज्यूम नहीं किया जा सकता सिर्फ जब तक कि हमारे पास पूरा डेटा नहीं आ जाता। सो इट शुड बी नोटेड कि जो डेटा है वो कोरिलेशनल है, आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जोर डालना हो तो आप ये बोल सकते हो दैट इट शुड बी नोटेड, कि इस बात पे तो खास कर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट में मूव करते हैं, प्रिसाइजली। अब प्रिसाइजली का मीनिंग हो जाता है यकीनन, बेशक, निश्चित रूप से ऐसा ही है। So it is precisely the possibility of realizing a dream that makes life interesting. अब ये कहा गया है पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग अ ड्रीम, कि जब आप ये रियलाइज कर लो कि आपका ड्रीम क्या है, तो ये चीज यकीनन यानी निश्चित रूप से हमारी लाइफ को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। नेक्स्ट है, nobody knows precisely how many people are still living in the camp. देखो अगर हम सिंपली ये बोल देते that nobody knows how many people are still living in the camp, दैट मीन्स हाँ किसी को नहीं पता भी कितने लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये वर्ड यहाँ पे ऐड किया दैट nobody knows precisely, कि निश्चित रूप से यानी कि एग्जैक्ट उनका नंबर क्या है वो किसी को नहीं पता, तो यहाँ पे हमने और ज्यादा जोर डाला है इस बात पे कि कितने लोग हैं, उनकी काउंटिंग क्या है वो हमें नहीं पता अभी। Coming to the next one, the timing of the gun was precisely synchronized with the turning of the plane's propeller. इसमें ये कहा गया है कि जो गन की टाइमिंग थी वो प्रिसाइजली यानी बहुत डिटेल्ड मैनर में सिंक्रोनाइज की गई थी। सिंक्रोनाइज करना यानी कि हिंदी में आपने सुना होगा लयबद्ध करना, यानी कि दो चीजें हैं, दोनों को एक साथ में चलाना, दोनों को एक प्रोपोर्शन में रखना, कि अगर इस चीज में इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो, या फिर इसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसमें भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो। दोनों को इस तरह से रखना कि दोनों में सेम चेंजेस हो, वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनाइज। यानी कि जो टाइमिंग थी गन की वो बहुत ही बारीकी से सिंक्रोनाइज की गई थी प्लेन के प्रोपेलर के टाइम के साथ में, उसकी टर्निंग के साथ में। नेक्स्ट में आते हैं, शी डिड नॉट मेंशन, उसने मेंशन नहीं किया प्रिसाइजली हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट, कि उसने इंपॉर्टेंटली यानी कि निश्चित रूप से ये नहीं बताया कि उसमें इंसिडेंट में, उस घटना में कितने लोग इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट इज, शी इज प्रिसाइजली द काइंड ऑफ पर्सन वी आर लुकिंग फॉर, कि वो उनमें से निश्चित रूप से वो उन्हीं में से है, यानी वही पर्सन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, यानी जैसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं वो उसी में से एक है। शी इज प्रिसाइजली द काइंड ऑफ। नेक्स्ट है, वी कैरिड आउट हर इंस्ट्रक्शंस प्रिसाइजली, यानी कि हमने बिल्कुल निश्चित रूप से उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उन्हें कैरी आउट किया, उन्हें इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए इंडुबिटेबली, इसको हम यूज कर सकते हैं, हम बहुत बार अपने स्पीचेस में अनडाउटेडली यानी कि विदाउट अ डाउट ये वर्ड यूज करते हैं, ये फ्रेजेस यूज करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड इंडुबिटेबली इंस्टेड ऑफ दीज फ्रेजेस, दिस विल साउंड मोर इम्पैक्टफुल। इंडुबिटेबली सेम मीनिंग है, अनडाउटेडली इंडुबिटेबली एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, but this is a fancy word, a more fancy word than undoubtedly. So let's get started with our examples. The museum indubitably means undoubtedly has the best collection of modern art in the country. कि जो म्यूजियम है उसमें
विदाउट अ डाउट, अनडाउटेडली, कि एक बहुत अच्छा कलेक्शन है ऑफ मॉडर्न आर्ट हमारी कंट्री का. नेक्स्ट इज indubitably, means undoubtedly, the government would have passed the law if it had benefited all Indian citizens. की गवर्नमेंट बिना किसी डाउट के इस लॉ को पास कर चुकी होती अगर ये सारे इंडियन सिटीजन्स के हक में होता, उनके बेनिफिट में होता. नेक्स्ट इज when Bill opened his office door and Anne fell onto his floor, he knew indubitably she had been eavesdropping on his meeting. Okay, जब बिल ने गेट खोला ऑफिस का तो क्या हुआ कि जो एन है ये फेल इनटू हिज फ्लोर, ये उसके बिल के फ्लोर पे गिर गई. सो उसमें क्या है, ही न्यू, अब उसे पता चल गया दैट अनडाउटेडली, कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दैट शी हैड बीन eavesdropping. अब eavesdropping क्या है, कान लगा के जब हम दीवार के पास सुनते हैं ना कि दूसरों की बातें क्या हो रही हैं, उसके लिए ये टर्म है eavesdropping, और उस पर्सन को बोला जाता है eavesdropper. देखो, सुनने में आपको ये लगेगा कि कान लगा के हम सुन रहे हैं तो ईयर ड्रॉपर होगा या ईयर्स ड्रॉपिंग, नहीं, वो नहीं है, ईव्स ड्रॉपिंग. ये है स्पेलिंग इसकी करेक्ट, यानी कि दूसरों की बातें छुप के सुनना. नेक्स्ट इज शी वॉज इंडुबिटेबली द बेस्ट कैंडिडेट, की इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो हमारी बेस्ट कैंडिडेट थी. इंडुबिटेबली स्ट्रेस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो स्ट्रेस है उसने उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाया ही है. नेक्स्ट इज दिस इज इंडुबिटेबली द बेस्ट चॉकलेट केक आई हैव एवर टेस्टेड, कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये जो चॉकलेट केक है वो बेस्ट चॉकलेट केक है जो मैंने अब तक खाया है, इंडुबिटेबली. नेक्स्ट में मूव करते हैं. इफ ट्रूथ बी टोल्ड, या फिर टू टेल द ट्रूथ, और यहाँ पे जो यू है ये ब्रैकेट में है, दैट मीन्स आप इसको यूज कर भी सकते हो, और अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे सामने वाले से ही बात की जा रही है. कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ब्रैकेट में चीजें लिख दी जाती हैं, दैट मीन्स आप उनको यूज भी कर सकते हो, आप उनको अवॉइड भी कर सकते हो, वहां पे नेसेसिटी नहीं होती. सो इफ ट्रूथ बी टोल्ड, यानी कि अगर सच कहा जाए तो, या फिर टू टेल यू द ट्रूथ, कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ऐसा है, तो ये भी हम एम्फेसाइज डालने के लिए ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स में आते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हेल्प यू इन दिस chaos. chaos यानी कि अ सिचुएशन ऑफ commotion, a situation of commotion. अब commotion क्या होता है, commotion हो जाएगा हलचल मची हुई है जहां पे, तो हलचल के लिए हमें वर्ड यूज करते हैं commotion. और chaos यानी कि कोई ऐसी ही सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, जहां पे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रखी हो, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो. आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हारी इस सिचुएशन में, इस जो गड़बड़ी में तुम फंसी हुई हो, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर भी सकती हूँ या नहीं, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. ट्रूथ बी टोल्ड, कि सच तो ये है. सो अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इफ ट्रूथ बी टोल्ड, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दैट ट्रूथ बी टोल्ड. तो ये अंडरस्टूड है. कई बार क्या है कि इफ ट्रूथ बी टोल्ड, यहाँ पे इफ जो है हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे अंडरस्टूड है इफ ट्रूथ बी टोल्ड, तो वहां पे बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट में आते हैं, शी नीडेड अ ट्यूब प्लेस्ड इन हर लंग्स टू ब्रीथ फॉर हर. ट्रूथ बी टोल्ड, देयर वाज नो टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू. ओके, ये एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बात की गई है कि उसके कोई पेशेंट है. सो पास्ट में है ये टेंस. सो अगर उसकी कोई पेशेंट थी, शी नीडेड अ ट्यूब, उसे एक ट्यूब चाहिए थी जो कि उसके लंग्स में प्लेस की जा सके, जो उसकी सांस लेने में हेल्प करे. ट्रूथ बी टोल्ड, यानी कि अगर सच कहूं तो देयर वाज नो टाइम, कि तब बिल्कुल भी टाइम नहीं था ये सोचने का कि अब आगे क्या किया जाए. नेक्स्ट है, इफ ट्रूथ बी टोल्ड, अगर सच कहा जाए तो, आई हैव नेवर रियली लाइक डेविड्स वाइफ, कि मैंने कभी डेविड की वाइफ को पसंद नहीं किया. नेक्स्ट इज व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया. द ट्रूथ बी टोल्ड, तो सच अगर कहा जाए तो, आवर कोचिंग स्टाफ हैड फेल्ड देयर, कि हमारा जो कोचिंग का स्टाफ था वो पूरा फेल हो गया था वहां पे, क्योंकि उनके ट्रेन किए हुए कोई भी बच्चे आगे गेम्स तक नहीं पहुंच पाए थे, या जो भी है. अगर सच कहूं तो द ट्रूथ बी टोल्ड, कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो फेल हो गया था.
यहाँ पे ये भी हो सकता था टू टेल यू द ट्रूथ, यानी कि अब आप सामने वाले किसी पर्सन से बात कर रहे हो कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो, या फिर इफ ट्रूथ बी टोल्ड का मीनिंग है अगर सच कहा जाए तो। नेक्स्ट है इफ द ट्रूथ बी टोल्ड, अगर सच कहा जाए तो सीजन 8 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स हैड द वर्स्ट एंडिंग, कि गेम ऑफ थ्रोन्स में सीजन 8 की जो एंडिंग थी वो अब तक की सबसे बुरी एंडिंग थी। लास्ट में आते हैं आई नो आई सैड दैट आई वांटेड टू गो आउट टू अ फैंसी रेस्टोरेंट टुनाइट, कि हाँ मैं जानती हूँ मैंने ये कहा था कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ किसी फैंसी रेस्टोरेंट पे आज रात को, बट इफ द ट्रूथ बी टोल्ड, लेकिन अगर सच कहा जाए तो आई वुड रेदर जस्ट स्टे होम एंड वॉच अ मूवी, कि मैं घर पे रहना और मूवी देखना ही पसंद करूंगी बजाय कि बाहर जाने के। हाँ उस टाइम पे मैंने कहा था, लेकिन सच कहा जाए तो ऐसा है कि मुझे घर पे रहना ज्यादा पसंद है। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं अभी। नाउ दिस इज द टाइम फॉर आवर वोकैबुलरी सेशन। आई कैन डिस्कस हेल्थ सर्विसेज, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इट। तो आज की हमारी वोकैबुलरी रहेगी पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड, और यहाँ पे ध्यान दीजिए पेशेंट एस भी गिवन है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे ऊपर देखोगे आप अपोस्ट्रोफी बाद में लगाया गया है। ये बाद में क्यों लगाया गया? हम तो अपोस्ट्रोफी एस इस तरह से यूज करते हैं ना। तो देखिए कई बार क्या होता है, अगर कोई हमारा वर्ड एस पे एंड हो रहा हो तो वहां पे हम ऐसे नहीं करते अपोस्ट्रोफी फिर से एस लगा दे। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। पेरेंट्स, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ पेरेंट्स, अब ये तो पहले से प्लूरल है। अब अगर इसमें हमें यहाँ पे पोजेशन शो करनी है तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे अपोस्ट्रोफी एस, फिर से नहीं लगाएंगे। यहाँ पहले से एस गिवन है ना, तो एंड वाला जो एस है वो हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ इस तरह से रहेगा पेरेंट्स। अब ये करेक्ट है। तो वही केस यहाँ पे गिवन है जो पेशेंट का केस है। पेशेंट भी अपने आप में प्लूरल था, तो इस वजह से अपोस्ट्रोफी एस, ये बाद वाला एस नहीं लगाया, एक बार फिर से इसे हटा दिया गया। सो इन हॉस्पिटल पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस, जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं आज के हमारी वोकैबुलरी। फर्स्ट फ्रेज है हमारा पुट somebody at their ease। ईज आपने बचपन में सुना होगा, स्कूल टाइम में आपने ये कमांड जरूर सुनी होंगी। अटेंशन, स्टैंड एट ईज। तो वो क्या होती है? अटेंशन, अटेंशन की सतर्क हो जाओ। और दूसरी क्या है? रिलैक्स होने के लिए कौन सी कमांड होती थी? स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। मुझे लगता है शायद आप में से कुछ को ये भी नहीं पता होगा कि उसको स्टैंड एट ईज कहते थे, क्योंकि हम उसको मिक्स कर देते थे स्टैंड एट ईज। तो यहाँ देखिए स्टैंड एट ईज यानी कि रिलैक्स, रिलैक्स होके खड़े हो जाओ। अब अटेंशन में नहीं हो तुम, अब रिलैक्स होके खड़े हो सकते हो। सो ईज यानी कि इजी, यानी कि आराम से। तो उसी से हम इसको रिलेट करते हैं पुट somebody at their ease, यानी कि किसी को रिलैक्स फील करवाना, किसी को कंफर्टेबल फील करवाना। अभी आते हैं इसके एक्चुअल मीनिंग पे। मेक somebody feel relaxed and not nervous। उसको अगर वो नर्वसनेस वाली स्टेज में है तब भी उसको आप कंफर्टेबल फील करवाओ। वहां पे हम इस फ्रेज को यूज करते हैं that you are putting that person at ease। नेक्स्ट है कीप somebody informed। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हम नहीं चाहते, यानी कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है। उस टाइम पे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हमें बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप है ना हमें समय समय पर बताते रहना, खबर देते रहना ना, मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो वही है, उसी केस में हम ये यूज करते हैं दैट कीप somebody informed। और यहाँ पे हम एक और फ्रेज यूज कर सकते थे दैट कीप somebody posted। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड हॉस्पिटलाइज्ड है, आप वहां पे रुक नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? उनको फोन करके बोलते हो कि मुझे टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन देते रहना कि कैसी हालत है तुम्हारी, कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी, या फिर उसके रिलेटिव्स को आप ये बोलते हो। तो वहां पे आप बोल सकते हो दैट कीप मी इन्फॉर्म्ड और कीप मी पोस्टेड। नेक्स्ट में आते हैं स्पॉटलेस। स्पॉटलेस यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल इसका ये है कि जब पोछा लगा दिया जाए तो उस पर कोई भी स्पॉट नहीं रहता, और उसके लिए स्पेसिफिकली उसके लिए एक टर्म यूज होती है जो यहाँ पे सिनोनिम्स में दी गई है, तभी मैंने ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया। उसको हम बोलते हैं इमैक्यूलेटेड फ्लोर,
यानी कि ऐसा फ्लोर, ऐसी जगह जहां पे कोई छोटा सा भी दाग नहीं है। दाग यानी स्पॉट और स्पॉटलेस यानी कोई दाग नहीं है। तो इसका ये जो सिनोनिम है ये आप अच्छे से याद कर लेना, इमैक्युलेट, स्पॉटलेसली क्लीन। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस उसके लिए हम यूज करते हैं जो पर्सन डिटेल्स में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, और ऐसे पर्सन के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज फस्टिडियस। फस्टिडियस जो बहुत ज्यादा ध्यान देता हो डिटेल्स में। नेक्स्ट है नथिंग इज टू मच ट्रबल। somebody is always ready to help, यानी कि कोई भी पर्सन जो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता हो, तो वो पर्सन इस फ्रेज को यूज कर सकता है, that nothing is too much trouble, कि मुश्किल की, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। नेक्स्ट इज की हॉल सर्जरी। अब ये एक ऐसी सर्जरी होती है, एक ऐसा मेडिकल ऑपरेशन होता है जिसमें बॉडी में एक स्मॉल कट बनाया जाता है और उसके थ्रू ही वो पूरी सर्जरी हो जाती है। नेक्स्ट है मिक्सअप। अब मिक्सअप यानी कि इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा सारी चीजों को मिक्स कर देना, सारी चीजों को मैसअप कर देना, MESS, मैस अप। इसका भी वही मीनिंग हो जाता है जो मिक्सअप का है, यानी कि पूरी गड़बड़ बना देना। और इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और वर्ड यूज किया था, एंड दैट इज केओस। इसको चाओस नहीं बोलते, इट इज केओस। और यहाँ पे इसका सिनोनिम है मडल। मडल पूरा मिक्सअप कर देना, पूरा गड़बड़ बना देना वहां पे। नेक्स्ट इज सेकंड टू नन। सेकंड टू नन हम उसके लिए यूज करते हैं जो अपने आप में बेस्ट होता है। सो इफ अ ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर हेल्थ सर्विसेज की बात हो रही है, सो इफ अ ट्रीटमेंट इज सेकंड टू नन दैट मीन्स इट इज द बेस्ट, यानी कि वो बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट में आते हैं रश्ड ऑफ योर फीट। उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं ये फ्रेज जो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। दैट मीन्स ही इज रशिंग ऑफ हिज फीट, एक्सट्रीमली बिजी विद टू मेनी थिंग्स टू डू। नेक्स्ट इज टेक नो नोटिस ऑफ समबडी और समथिंग। टेक नो नोटिस यानी कि ध्यान न देना बिल्कुल भी। सो पे नो अटेंशन टू समबडी और समथिंग। अच्छा, ध्यान रखना, गिव अटेंशन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे पे अटेंशन, दैट वुड साउंड मोर इम्पैक्टफुल। सो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं। अ स्टे इन हॉस्पिटल से रिलेटेड ही है ये। सो इफ यू नीड मेडिकल केयर यू मे बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल में उसको रख लिया, वहां पे हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, यानी कि he or she has been admitted to the hospital, to hospital. टेकन देयर एंड ट्रीटेड, वहां पे रखा जाना और ट्रीटमेंट किया जाना उसका, और उसके बाद में जब उसको छुट्टी मिलती है तो उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, दैट डिस्चार्ज्ड, he or she has been discharged now. नेक्स्ट है देन यू मे गो होम। उसके बाद में आप घर जा सकते हो। और यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं वो बहुत जरूरी हैं आपके लिए, और हो सकता है आप में से बहुतों ने वो सुने भी नहीं होंगे इससे पहले। फर्स्ट वर्ड इज कॉन्वालेस। कॉन्वेलेस यानी कि ये उस टाइम को हम बोलते हैं जो रिकवरी टाइम होता है, यानी कि आप बीमारी से उठे हो, उसके बाद में आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए है, आपकी हेल्थ बेटर करने के लिए, पहले जैसे करने के लिए, वहां पे हम बोलते हैं कॉन्वालेस। और यहाँ पे ये वर्ड है कॉन्वालेसेंस, ये इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो पूरे टाइम ड्यूरेशन और उस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कॉन्वालेस। टाइम या फिर जो एफर्ट्स लगते हैं उन दोनों के केस में। और इनका एक सिनोनिम होता है रिकपरेट। रिकपरेट और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा रिकपरेशन, बिकॉज TION इज अ नाउन सफिक्स। तो वर्ब फॉर्म है कॉन्वालेस एंड रिकपरेट, नाउन फॉर्म हो जाएंगे कॉन्वालेसेंस एंड रिकपरेशन। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अभी इन सभी वर्ड्स और फ्रेजेस को हम यूज करेंगे सेंटेंसेस में। The nursing staff immediately put me at my ease and I was kept informed at all times. कि जो नर्सिंग स्टाफ था वहां पे उन्होंने तुरंत ही मुझे कंफर्टेबल फील करवाया, मुझे रिलैक्स्ड फील करवाया, और पूरा टाइम उन्होंने मुझे इन्फॉर्म्ड रखा कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो ये था। नेक्स्ट इज आई हैड की होल सर्जरी ऑन माई नी। कि मेरे घुटने पे, नी यानी घुटना, मेरे घुटने पे की होल सर्जरी हुई है। अपार्ट फ्रॉम अ मिक्स अप ओवर माई नोट्स द ट्रीटमेंट वॉज सेकेंड टू नन। यानी कि
मुझे लग रहा था कि मिक्सड अप हो जाएगा सब कुछ, अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा ये क्या था, सेकंड टू नन, उसकी बजाय क्या था ये सेकंड टू नन, यानी कि दिस ट्रीटमेंट वाज द बेस्ट एवर ट्रीटमेंट आई हैव हैड। नेक्स्ट इज सिस्टर एंड्स वार्ड वाज स्पॉटलेस, कि उनका जो वार्ड है वो बहुत ही स्पॉटलेस था। एंड एवरीथिंग वाज डन विद मेटिकुलस केयर, बहुत ही ध्यानपूर्वक केयर के साथ में किया गया था सब कुछ। नथिंग वॉज टू मच ट्रबल, यानी कि वहां पे हर टाइम कोई ना कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही रहता था। देन नथिंग वॉज टू मच ट्रबल। नेक्स्ट है आई नो स्टाफ वर रश्ड ऑफ, कि हाँ स्टाफ जो है वो बहुत रश्ड ऑफ, यानी उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं ऑफ देयर फीट। बट नो वन टुक एनी नोटिस ऑफ माई कॉल्स फॉर हेल्प, लेकिन जो मेरी कॉल्स थी, यानी कि मैं बार बार जो बोल रही थी हेल्प के लिए, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नो वन टुक नोटिस ऑफ दैट। नेक्स्ट है आई वॉज एडमिटेड टू द वार्ड, मैं वार्ड में एडमिटेड थी। सीन बाय अ जूनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर मुझे देख रहा था। देन नथिंग हैपेंड फॉर 2 days, और उसके बाद में 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, कि 2 दिन तक मेरा ध्यान नहीं रखा गया, ये हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, और ये आपका टास्क रहेगा। S means same and D means different। तो आपको 2 कॉलम्स गिवन है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को आपको मैच करना है। आपको लग रहा है कि वो दोनों सेम मीनिंग दे रही हैं, उस केस में आप यहाँ पे आंसर में S लगाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे D लगा दोगे अपना आंसर। और नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पे अबाउट योर कंट्री की बजाय अबाउट योर स्टेट अगर आप करोगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि कंट्री तो एक ही है। स्टेट या फिर बेटर है इससे भी होम टाउन, कि आपके होम टाउन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो आप सारे यहाँ पे मेंशन करना, और आपको ये ब्लैंक सारे फिल करने हैं जो हमारी आज की वोकैब यूज हुई थी उसी में से। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।